Hello everyone, my name is Avinash Dhodi and today I will discuss about simulations. What is simulation? A simulation is a recreation of a real world process in a controlled environment. It uses something called modeling to figure out the result of simulation. Simulation techniques. Simulation is the process of designing a model of real system, conducting experiment with the model for purpose of understanding the behavior for the operation of the system. A duplicate duplication of the original system to understanding the implementation of the system. This method is used by various type of organization for the different uses, like for inventory control, financial decision. How are simulation used? Simulation are used in many ways. They are used for scientific discovery, to test design, for safety, to save money, and even to create graphic for movies and videos game. Scientists use simulations all all the time for all the time. For example, you could input the laws gra- gravitation into a computer and use it to create a 3D simulation of the planet of solar system or orbiting the sun. Monte Carlo simulation techniques. It is an experiment of probability. Use random numbers and require decision. Understanding of these techniques. To understand this technique, this is break down into 5 steps. First, establishing probability distribution, cumulative probability distribution, setting a random number interval. Fourth, generating random numbers, and fifth, to find the answer answer of question asked using the above the 4 step. Simulation techniques. Example solving. First question. Does the strong a dentist schedule all his patients for 30 minutes appointment? Some of the patient take more or less than 30 minutes depending on the type of dental work to be done. The the following table show the summary of the various categories of work, their probabilities, and and the time actual needed to complete the work. Simulate the dentist clinic for 4 hours and then determine the average waiting time for the patient as well as the idleness of the doctor. Assume that all the patients show up at the clinic exactly at their schedule. Arrival time starting at 8 a.m. Use the following random numbers for handling the above problems. Random numbers given there: 40, 82, 11, 30, 34, 25, 66, 17, and 79. This part of question: category, time required, and probability of category. Category: फिलिंग, क्राउन, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, चेकअप, ये सब कैटेगरी दिए हुए हैं। और टाइम रिक्वायर्ड है, फिलिंग का टाइम रिक्वायर्ड है 45 एंड प्रोबेबिलिटी कैटेगरी है। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया ही रहता है, नहीं दिया ही रहता है। फिलिंग टाइम रिक्वायर्ड है, फिलिंग का 45 मिनट्स, प्रोबेबिलिटी है 0.40, क्राउन का 60,
टाइम रिक्वायर्ड 60 है, प्रोबेबिलिटी 0.15, क्लीनिंग का 15, प्रोबेबिलिटी 0.15, एक्सट्रैक्शन का 45, प्रोबेबिलिटी 0.10, चेकअप का 15, प्रोबेबिलिटी का है 0.20। अब हम सॉल्व करेंगे ये। फर्स्ट स्टेप, कैटेगरी ऑफ वर्क, कैटेगरी कितनी है, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में था वही है इधर। ये इतना वाला एक क्वेश्चन है और ये हमें सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करना है। कैटेगरी पहले का दिया है वैसे ही, फिलिंग, क्राउन, क्लीनिंग, एक्सट्रैक्शन, चेकअप। प्रोबेबिलिटी दिया था क्वेश्चन में, वही यहाँ पे लिख लेना है, लिखा है 14, 0.14, 0.15 ऐसा ही लिखना है। और कम्युलेटिव कैसे लिखते हैं, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें ये वाला प्रोबेबिलिटी का ऐसा नीचे की तरफ प्लस करके यहाँ लिखना है, एज इट इज़। ये पहला लिखना है 0.14, उसके बाद 0.14 में ये 15 ऐड करना है, उसके बाद ऐड करने के बाद ये 55 हो जाएगा, और 55 में ये 0.15 ऐड करना है, 70 हो जाएगा। उसके बाद 70 में ऐड करना है 10, 0.10, 80 हो जाएगा, और 80 में 20 ऐड करना है तो 1 हो जाएगा। ऐसा हमारा कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। और रैंडम नंबर, अभी रैंडम नंबर के लिए रैंडम नंबर्स इंटरवल, यहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा है 0039। और यहाँ पे जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, यहाँ जो नंबर लास्ट में दिया हुआ है 2 डिजिट का पीछे, उसका 1 डिजिट कम करके लिखना है यहाँ पे रैंडम नंबर में। जैसे कि यहाँ दिया है 0039, यहाँ का 40 है तो 1 कम करके 39, और वापस यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बढ़ा के लिखना है आगे 40। और यहाँ पे जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी 55 है उसका कम करके यहाँ पीछे लिखना है 54। वैसे ही सभी का करना है, यहाँ का 54 है तो यहाँ 55, और यहाँ 70 है तो यहाँ 1 कम करके 69, और यहाँ पे 69 है तो यहाँ नीचे लिखेंगे 70, एक बढ़ा के लिखा है। और यहाँ पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी का 80 है तो यहाँ पे 79। वैसे ही यहाँ पे 79 पे एंड होता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम 80 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग मानते हैं कि 100 है तो इसमें से 1 कम करके यहाँ पे लिखेंगे 99। ऐसा हमारा रैंडम नंबर इंटरवल आ जाता है। हमें क्वेश्चन में दिया था कि पेशेंट को आधा आधा घंटा देना है। कितने घंटे के लिए हमें बोला है, 4 घंटे के लिए। तो आधे आधे घंटे के लिए हम 4 घंटे में कितने पेशेंट ले सकते हैं, हम 8 पेशेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये 8 पेशेंट का नंबर लिख लिया है यहाँ पे। आधे आधे घंटे का हमें 4 घंटे के लिए टाइम दिया है, उस हिसाब से हम उस 4 घंटे में 8 पेशेंट ही आ पाएंगे। और शेड्यूल अराइव में हमको क्या बोला है, कब से टाइम स्टार्ट हो रहा है, पेशेंट ये सर्विस कब से स्टार्ट हो रही है, 8 बजे से। क्लिनिक कब स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे से। तो हमने यहाँ से 8 बजे से 8 बजे से ये टाइम लिख दिया है कि एक पेशेंट को कितना टाइम देना है, आधा घंटा। तो हम लोग ने 8 से 8:30 आधा आधा घंटा सबको दिया है, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, ये सब हमने ऐसा शेड्यूल अराइव में लिखा है।
अभी रैंडम नंबर्स कहाँ से हैं आए, ये क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ये वैसे कि वैसे सीरीज़ वाइज लिख देने का है, जैसे क्वेश्चन में होते हैं वैसे ही लिखने हैं ये वाले। ये हमने सब लिख दिए 40, 82, 11, 30, 34, 25, 66, 17, 79। रैंडम नंबर लिखने के बाद हमें सर्विस कैटेगरी फाइंड करनी है, किस में आता है ये रैंडम नंबर्स। ये देखिए ये रैंडम नंबर 40 है, तो 40 नंबर किस सीरीज़ में आ रहा है, 40 कौन से कैटेगरी में आ रहा है वो देखते हैं। रैंडम नंबर लिखने के बाद हमें सर्विस कैटेगरी फाइंड करना है। रैंडम नंबर दिया हुआ है फर्स्ट पेशेंट का 40 नंबर दिया है, तो सर्विस कैटेगरी कैसे फाइंड करेंगे। जो ऊपर वाला चार्ट में दिया है रैंडम नंबर्स अराइवल, उसमें देखेंगे 40 नंबर कहाँ पे आ रहा है, किस में किस रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे 40 नंबर आ रहा है सेकंड में। क्राउन फिलिंग का देखिए कैटेगरी क्राउन फिलिंग आ रहा है और 40 to 54 में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्राउन लिखेंगे। कैटेगरी कौन सी आई, क्राउन। अभी सेकंड वाला 82 किस रेंज में आ रहा है, रैंडम नंबर अराइवल में देखेंगे 80 to 99 रेंज में आ रहा है, वो है कि उसकी कैटेगरी आ रही है चेकअप, तो यहाँ पे हमने चेकअप लिख दिया। वैसे ही 11 किस में आ रहा है, फर्स्ट में रैंडम नंबर अराइवल में आ रहा है 00 to 39 फिलिंग में, तो हमने यहाँ पे फिलिंग लिख दिया। अभी इसका सर्विस टाइम देखेंगे। सर्विस टाइम क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट पेशेंट का रैंडम नंबर है 40, कैटेगरी क्राउन आया, उसका सर्विस टाइम कितना है क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में 45 मिनट्स, तो देखिए यहाँ पे हमने नहीं सॉरी हाँ क्वेश्चन में दिया है क्राउन का 60 मिनट, और चेकअप का क्वेश्चन में दिया है चेकअप का, यहाँ पे चेकअप का है चेकअप हाँ 15 टाइम रिक्वायरमेंट देखना है 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने सर्विस टाइम में 15 लिख दिया। वैसे ही पूरा का पूरा वैसे ही कर दिया है ये वाला। अभी हम लास्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये वाला चार्ट में देखेंगे। अभी यहाँ पे पेशेंट पहले थे उतने ही लिखे, 8 है पेशेंट। अराइवल टाइमिंग है आधे घंटे का गैप देना है, ऐसे ही 8 से आधे घंटे का गैप देके 11:30 तक किया है। स्टार्ट सर्विस कब हो रहा है, 8 बजे, 8 से आधे 8 बजे से लिख दिया है। अभी सर्विस ड्यूरेशन, फर्स्ट पेशेंट का सर्विस ड्यूरेशन क्या है इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 60 मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया 60 मिनट। और सर्विस एंड कब हो रही है उसकी, 8:30 को सर्विस स्टार्ट हुई, 8 बजे सर्विस स्टार्ट हुई, और उसका ड्यूरेशन है 60 मिनट। 60 मिनट चेकअप करने के बाद उसकी सर्विस एंड होती है 9 बजे। उस पेशेंट को वेट कितना करना पड़ा, उसको वेट ही नहीं करना पड़ा, वो पहला पेशेंट है, इसके लिए वो 8 बजे सर्विस चालू हुई है, वो तुरंत मिल गई। और आइडल टाइम यानी डॉक्टर कितने देर तक वेट करता रहा, 0 टाइम, क्योंकि उसके पास पेशेंट पहला ही पेशेंट आ गया। अभी सेकंड पेशेंट का देखते हैं। बराबर। अभी सेकंड पेशेंट का अराइवल टाइमिंग क्या है, 8:30, और उसकी सर्विस स्टार्ट कब हुई, पहला पेशेंट का सर्विस एंड हुई 9 बजे, तो उसकी सर्विस स्टार्ट होगी 9 बजे। और सेकंड पेशेंट का ड्यूरेशन क्या है, 15 मिनट, तो उसकी सर्विस एंड होगी 9:15 को, और उसको वेटिंग कितना करना पड़ा, आधा घंटा वेट करना पड़ा। वैसे ही थर्ड का, सेकंड वाले का सर्विस एंड कब हुई, 9:15 को,
और थर्ड वाले की अराइवल टाइमिंग क्या है 9, और उसकी सर्विस चालू कब हुई 9:15 को। उसकी सर्विस ड्यूरेशन है 45 मिनट्स, तो उसकी सर्विस एंड होगी 10 बजे। उसको वेटिंग कितना करना पड़ा 15 मिनट। अभी फोर्थ वाले का, थर्ड की सर्विस कब एंड हुई 10 बजे, और चौथे पेशेंट का अराइवल टाइमिंग क्या है 9:30, तो उसकी स्टार्टिंग सर्विस होगी 10 बजे और उसका सर्विस ड्यूरेशन क्या है 45 मिनट्स, तो उसकी सर्विस एंड होगी 10:45 को, एंड उसे वेटिंग कितना करना पड़ा 30 मिनट्स। फिफ्थ पेशेंट, अराइवल टाइमिंग है उसका 10 बजे और फोर्थ पेशेंट का एंडिंग सर्विस एंड हुआ 10:45 बजे, तो यहाँ पे उसको सर्विस स्टार्ट होगी उसकी 11:15 बजे और उसका सर्विस ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। उसका एंड सर्विस होगा 11:30। उसको वेट कितना करना पड़ा 45 मिनट्स। वैसे ही 6 पेशेंट को उसका अराइवल टाइमिंग है 10:30 और 5वें पेशेंट का एंड टाइम हुआ 11:30, तो उसको यहाँ पे 6 पेशेंट को 11:30 बजे सर्विस मिल रही है और उसका सर्विस ड्यूरेशन क्या है 15 मिनट, तो इसका एंड सर्विस एंड कब होगा 11:15 बजे और उसको वेट कितना करना पड़ा 60 मिनट। अभी 7 पेशेंट का अराइवल टाइमिंग है 11 और उसे उसकी सर्विस कब स्टार्ट हुई 11:15 बजे, क्योंकि 6 पेशेंट की 11:15 बजे एंड हुआ, तो उसका अभी 11:15 बजे चालू होगा। और अराइवल टाइमिंग क्या, सर्विस ड्यूरेशन क्या है इसका 45 मिनट्स और सर्विस एंड हुआ 12:30। उसको वेट कितना करना पड़ा 45 मिनट्स। अभी 8 पेशेंट का अराइवल टाइमिंग है 11:30 और 7 पेशेंट का 12:30 बजे एंड हुआ, तो यहाँ पे इसका 12:30 बजे चालू होगा सर्विस ड्यूरेशन 45 मिनट्स और सर्विस एंड हुआ 1:15। इसको कितना वेट करना पड़ा 60 मिनट। और आइडल टाइम क्या है, डॉक्टर को कितना वेट करना पड़ा, डॉक्टर को वेट ही नहीं करना पड़ा। एवरेज वेटिंग टोटल कितना हुआ, ये टोटल करना है, ये पूरा का पूरा ये टोटल आएगा 285 डिवाइड बाय नंबर, पेशेंट नंबर 8, आंसर आएगा 35.625 मिनट्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।